Okay, so today we are going to discuss about the median in case of the individual series, and we have to make a program in C++ to find out the median. So median कैसे निकालते हैं? आपको एक x सीरीज जो है वो गिवन होगी, आपने उसको कर लेना है सॉर्ट द x सीरीज, आपने उस सीरीज को सॉर्ट कर लेना है इन असेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, बट इट इज बेटर टू सॉर्ट दैट इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने देखनी है कि वो क्या है। इवन हो सकती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओड हो सकती हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन एन की वैल्यू, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन है तो मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? मीडियन निकालने का तरीका होता है जी, आपका फॉर्मूला है n बाय 2, n by 2, where n is the number of observation, n by 2th item plus n by 2, n by 2 प्लस 1। ये 2 प्लस 1 नहीं है, ये n by 2 प्लस 1 है, तो n by 2 प्लस 1 है ये, तो n by 2 प्लस 1 item, and then you have to divide the whole, you have to divide the whole, आपको सारा डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, तो सारे का सारा आप डिवाइड करोगे बाय 2। तो इस तरीके से व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट द मीडियन इन केस ऑफ द इवन नंबर, कि अगर मेरे पास n के जो नंबर है वो इवन है, लेकिन अगर n के नंबर मेरे पास ओड है तो फॉर्मूला क्या है? वो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज n प्लस n बाय 2, n बाय 2 and then you have to plus 1, so n by 2 and then प्लस 1, तो ये आपका फॉर्मूला है, एंड देन बाय 2। तो इस तरीके से क्या है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द मीडियन। इस तरीके से आप जो है वो मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। मीन टू से कि अगर आपके पास, आपने ये देखना है कि पहली बात कि आपको जो सीरीज मिलेगी वो एक एक्स सीरीज होगी, आपने उस एक्स सीरीज को सॉर्ट कर लेना है नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, एंड आफ्टर दैट आपने देखना है कि जो n है क्या वो इवन है या ओड है। अगर n इवन है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मीडियन वैल्यू निकालने के लिए, और अगर n आपका ओड है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मीडियन की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड आउट द मीन। सो जस्ट 1 minute, वी आर स्टार्टिंग ओवर C++, and so we are going to have a new file, and we are going to name it, median. So because we are going to find out median, and this is in case of the individual series, cpp is the extension of the file. Now program sorry program to find median in case of individual series. So first of all you have to include some files, like you have to include that iostream.h file, then you have to include that console input output file, and I don't think we need any other file, but you can also include this io sorry you can also include this other file that we can use in C++, that is iomanip.h file. This is the manipulator file. If you are using that setw or you are using endl, these are called manipulators. So if you are going to use those manipulators, then you can also use this file, the manipulator file. So next one is that you have to use this void main, the main function, and then what we need a array, say x, size is 100, so we can maximally we can enter
100 element in this array. It is of type float, so you can enter even number or odd number. That's not a case. So next one, that is we need some variables like that median. Median met is to store the median result, and then we are going for some variables like looping variables. One is the I is our looping variable, and n is the number of iterations, and n is the number of iterations. So clear screen to clear the output screen, and then see out. Again we have to type that enter the size of the series, enter the size for the series, and then you that size will be in the variable n. तो यू हैव टू चेक आउट दैट कि n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर ग्रेटर देन 100 हुई तो आपकी सीरीज एंटर नहीं हो पाएगी, बिकॉज मैक्सिमम एलिमेंट दैट द एरे कैन हैव इज 100. So you have to print that message, that value. Okay, so we can use here endl also. Endl mean it is a manipulator, and the definition of endl is in the iomanip.h. So endl mean new line character, backslash n use कर लो, endl use कर लो, एक ही बात है. So now we are going to use message, that is size of n must be less than equal to 100. So next one is get ch to stop the screen, to hold the screen, and go to say p. P mean you have to again enter the size for that array, and where p is a label, so we are using that go to statement now. So next we have to enter the observations. Now we can use enter the values of x series. X series की values enter करनी है आपने. You have to use that for loop. I से शुरू होगा, less than n चलेगा, I plus plus, and then again you can also use here this. वैसे तो वो 0 से ही चलता है, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं. अगर हमने उसको 1 से चलाया, देन आपको जो ऑब्जर्वेशन है वो i लेस देन इक्वल टू n करना पड़ेगा, बिकॉज उस केस में वो 1 से लेके 100 तक जा सकता है. देन सी इन, जो वैल्यू आपकी है वो किस में चली जाएगी, x में चली जाएगी. तो हमारी x सीरीज जो है वो एंटर हो चुकी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन. बट प्रॉब्लम इज दैट यू कैन नॉट फाइंड आउट द मीडियन अनलेस के आपकी x सीरीज जो है वो सॉर्टेड हो. तो यू हैव टू सॉर्ट द x, आपको x को जो है वो सॉर्ट करना पड़ेगा. दिस मीन टू से व्हाट वी नीड, वी आल्सो नीड टू सॉर्ट x. हमें अब x जो है उसको सॉर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक वन मोर वेरिएबल, दैट इज t. t is a temporary variable that is used to sort the series. So how we can sort the series, we are going to use that same loop. So because we have to compare all the elements of the series, so we are going to use the same loops, and then one loop is that j. Again it is a looping variable, j is equal to I plus 1, and then j less than equal to n, j plus plus, and then if xi greater than less than xj. So this we can use. There are so many sorting techniques, like bubble sort is there, selection sort is there. So you can use any one of that sorting technique to sort out this. T is equal to xi, xi is equal to xj, and then x, sorry, t is equal to xi, xi is equal to xj, xj is equal to t. So using this technique you can sort the elements of the array. Now we can show the sorted list. So the sorted list is, we can see right here the sorted list, where we can use that again same loop that we are using to enter the values. So see out, और जो वैल्यू शो करवानी है हमने, वी कैन यूज दैट एंडल मैनिपुलेटर. और जो वैल्यू हमारी है वो किसमें है, वो हमारी x नाम की एरे में है, तो उसको हम यहाँ पर शो करा देंगे. तो दिस इज हाउ हम लोग क्या करते हैं, वी विल सॉर्ट द लिस्ट. तो अभी मीडियन नहीं निकाला हमने, सिर्फ लिस्ट जो है वो सॉर्ट की है. प्रोग्राम को हमने कर लेंगे जी,
अपने सेव और देखते हैं ये सॉर्ट हुई है कि नहीं भी हुई है, एंड देन कंपाइल. So error, one error is there, j. So j is a variable that is not defined, so we have to define that j also, because j is also a looping variable. Now compile, so no error, run. So enter the series 5 values, 1 4 2 0 7. So the sorted list is 7 4 2 1 0, but it is in the descending order. ये घटते हुए क्रम में है, so we have to change it into the ascending order. Simply you have to change the sign. अगर greater than sign लेके चलेंगे तो वो ascending में हो जाएगा, less than करेंगे तो वो descending में हो जाएगा. Again we run it. Size 1, number is 67, 5 something like this, then 0, then 4, then 2. तो नंबर इज 0 2 4 67 3 4 5. तो हमने अपनी लिस्ट जो है वो क्या कर ली है, सॉर्टेड ऑर्डर में जो है वो कंप्लीट कर लिया. तो हमने यहाँ पर पहला पार्ट कर लिया अपने प्रोग्राम का. हमने यहाँ पर देखो, बिकॉज टी इज आल्सो ए बैकस्लैश करेक्टर, ये आपका एक करेक्टर है, टैब करेक्टर है, तो इसको अगर आप 2 बार दे दोगे तो फिर डी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज वो ही प्रिंट कर रहा था, क्योंकि उसको वो एज ए फिर बैकस्लैश टी को वो टैब करेक्टर ले रहा था. तो एस्केप सीक्वेंसेस अगर आपको याद हो, तो उसको वो एस्केप सीक्वेंसेस ऐसे मान रहा था, तभी वो उसने ही शो कर दिया था. लेकिन अगर मैंने 2 बार करूंगा तो वो दा ही शो करेगा, फिर उसको पता लग जाएगा कि ये एस्केप सीक्वेंस जो है वो नहीं है. सो जस्ट 1 minute, I am just connecting the charger to the laptop. So in this program so far we have sorted the list. तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी होती है जब भी हम लोग मीडियन करते हैं तो we have to sort the list. हमने अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना होता है, तो हमने अपनी लिस्ट जो है वो हमने सॉर्ट जो है वो कर ली है. हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन. अब वो कहता है मीडियन कैसे फाइंड करना है. कहता है मीडियन फाइंड करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो क्या है, that you have to check that n is even or odd. So you have to check if n modulus 2 इक्वल टू 0. अगर n को 2 के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, तो इसका मतलब n क्या है, n है इवन. और अगर 0 नहीं आता तो n क्या है, n है ओड. अगर n इवन है तो मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू x n बाय 2 टूथ आइटम. x की n बाय 2 आइटम जो है उसको आपने प्लस कर देना है x की n बाय 2 आइटम से +1. तो n बाय 2 आइटम +1, तो मतलब n बाय 2 करके जो आइटम आएगी उसकी अगली आइटम से उसको आपने प्लस कर देना है. एंड आपने इस सभी को क्या कर देना है, आपने इस सभी को कर देना है डिवाइड 2 से. डिवाइड क्या कर देना आपने, इसको 2 से डिवाइड कर देना. तो दिस इज हाउ आपका जो मीडियन है वो बन जाएगा इन केस ऑफ द, अगर आपके जो नंबर है वो इवन है, इवन नंबर है आपके पास. लेकिन अगर आपके पास ओड नंबर है तो फिर मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू x n बाय 2 +1 आइटम. n बाय 2 करके जो वैल्यू आएगी +1 करके जो आइटम आएगी, दैट आइटम डिवाइडेड बाय 2.0. तो ये उसका फॉर्मूला है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका मीडियन हो जाएगा. तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने देखा कि मीडियन कैसे निकालना. हमने कि पहले तो सॉर्ट कर दिया. सॉर्ट करने के बाद हमने x की सीरीज में देखा कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है कि ओड है. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर ये पुट कर दिया है. और अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो फिर ये वाला फॉर्मूला चलेगा. एक ही, या तो ये मीडियन निकलेगा ये निकलेगा, डिपेंड है कि इफ की वैल्यू का रिजल्ट जो है वो क्या आता है. एंड देन वी हैव टू शो आउट दैट मीडियन. अब हमने वो मीडियन जो है वो स्क्रीन पे शो करवा देना है. तो हमने लिखना मीडियन इज इक्वल टू मेट. मेट के वैल्यू में मीडियन है, तो हम करेंगे जिसको फाइल में जाएंगे, वी हैव टू सेव इट एंड देन वी हैव टू रन करेंगे. एंड एरर है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. सो बिकॉज
n is a floating point number. So okay, the problem is there, we can sort out, we simply compile करते हैं इसको एक बार. Error है, yes. So we cannot take n as a float because जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो सिर्फ इवन नंबर पे ही काम करता है, वो जो होता है आपके उसके ऊपर जो है वो काम नहीं करता. तो मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है इट ऑलवेज वर्क ऑन द इवन नंबर, ये आपके फ्लोट नंबर पे काम नहीं करता. तो दैट्स व्हाई दिस एरर इज कमिंग. तो वन एरर इज देयर मिसिंग. तो मिसिंग है, यस. तो हमने, यस, सो दिस इज द राइट फॉर्मूला. तो कंपाइल करते हैं, नो एरर. एक बार इसको सेव कर लेते हैं, ऑल्ट एफ पे जाके सेव, यस, एंड देन ऑल्ट आर, रन. सो कहता एंटर द साइज ऑफ द सीरीज. आई एंटर द साइज ऑफ द सीरीज 5. तो ऑब्जर्वेशंस आर 23, 43, 12, 55, 34 एंड आई एंटर. सो द मीडियन वैल्यू इज 17. तो 17 जो है वो मीडियन की वैल्यू है. तो इसको हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि विल इट वर्किंग और नॉट, क्या ये सही काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा. तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा कि n की ऑब्जर्वेशन है, हम कोई अपना सम ले लेते हैं. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द मीडियन. इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग जो है वो मीडियन जो है उसको आप फाइंड कर सकते हो. तो जस्ट 1 मिनट. तो अभी हमने जो मीडियन का सम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है. चेंज क्या आया है कि हम लोगों ने ना थोड़ी सी जो फॉर्मूला हमने लिया था उसमें हमसे गलती हो रही थी. यहाँ पर हम लोगों ने जो उसका फॉर्मूला है कि जब n आपका जो इवन आए तो मीडियन कैसे निकलता है कि एक तो n/2 आइटम निकालनी है आपने, एक n/2 प्लस 1 आइटम निकालनी है. फिर आपने जो x की n/2 लोकेशन है और n/2 प्लस लोकेशन की आइटम है उसको आपने ऐड करना है, जो वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो वो आपका मीडियन हो जाएगा. लेकिन अगर आपका ये वैल्यू जो है वो इवन नहीं आती, ओड आती है, तो उस केस में जो आपने वैल्यू मिड वैल्यू निकाली है वो कौन सी है, वो 1/n+2 है. तो ये जो लोकेशन है वो x में आपने फाइंड करनी है. जैसे मैंने x मेड किया है तो x की वो लोकेशन फाइंड हो जाएगी और वो वाली जो वैल्यू मेरी है वो मेरी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी. तो एक बार इस प्रोग्राम को वंस अगेन चला कर देख लेते हैं ताकि पता लग जाए कि प्रोग्राम कैसे चलता है. तो एक कोई भी सीरीज ले लेते हैं, हमने 5 वैल्यूज एंटर की हैं, वैल्यूज हमने कुछ भी एंटर कर दी हैं 5. तो उसके बाद सॉर्ट हो गया है और 75 देखिए 5 में से जो तीसरी वैल्यू है वो मीडियन वैल्यू है 75, और 75 जो है वो हमारा जो है वो रिजल्ट है. और अगर हमने इसको दोबारा चला के देखते हैं, हम रन करते हैं, इस बार हम 6 वैल्यू ले लेते हैं. तो हम केस ले रहे हैं आपका इवन वैल्यू वाला, क्योंकि 6 इवन नंबर हो गया ना. तो हमने वैल्यूज एंटर कर दी हैं कुछ, एंड देन तो आप देखोगे 76.5, क्योंकि वो अब 56 और 97 के बीच में मीडियन आना चाहिए था. तो 76.5 जो है वो आपका मीडियन जो है वो आ रहा है. तो दोनों केसेस में हमने अपना जो प्रोग्राम है वो बना लिया है. एंड दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड आउट मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज.